today topic is about structure of cell membrane. First of all, if we will describe about, we will discuss about the structure of cell membrane. Each cell is surrounded by a membrane called plasma or cell membrane, which act as a permeability barrier. 7 to 10 नैनोमीटर वाइड परमेबिलिटी बैरियर मतलब वो एज अ बैरियर वर्क करती है, सिलेक्टिव चीज़ों को पास होने देती है, कुछ चीज़ों को पास नहीं होने देती. Between the interior of the cell and the outer environment, the barrier is responsible for the isolation of contents of cell from its environment, but permits the selective exchange of certain substances between intracellular and intercellular spaces. अर्ली एक्सपेरिमेंट थे जो लिपिड सोलुबल जो मटेरियल वो ये सजेस्ट करते थे, जो लिपिड सोलुबल मटेरियल थे वो रेडिली पास कर जाते थे प्लाज्मा मेम्ब्रेन को, और ये सजेस्ट करता था कि लिपिड फेज मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर प्रेजेंट है. डिफरेंट तरह से जब मेजरमेंट की गई इसकी सेल मेम्ब्रेन की डिफरेंट मेथड्स के थ्रू, जिसमें उन्होंने देखा डिफरेंट मेथड क्रोमेटोग्राफी के, स्पेक्ट्रोफोटोमेट्री के, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी के, तो उन सब ने ये कंफर्म किया कि लिपिड जो है वो मेजर पार्ट है सेल मेम्ब्रेन का. एविडेंस फॉर द प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन इन सेल मेम्ब्रेन वाज आल्सो प्रेजेंटेड. Substances that denature protein can lyse the cell membrane. Cell membrane also possess antigenic properties which are only seen if protein are present. The phenomena of accelerated diffusion and active transport across cell membrane are dependent upon the presence of specific carriers which are protein in nature. Similarly, कुछ रिसेप्टर को हार्मोन भी हैं सेल मेम्ब्रेन के सरफेस पे, वो भी प्रोटीन इन नेचर होते हैं. इसके अलावा कार्बोहाइड्रेट भी प्रेजेंट होते हैं. अब ये आपको सिंपल सेल मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर नजर आ रहा है कि एक मेम्ब्रेन बनी हुई है जिसमें से आयंस जो है वो एक्सचेंज कर रहे हैं. नेक्स्ट इज फ्लूइड मोज़ेक मॉडल. द सो कॉल्ड फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बेस्ट एक्सप्लेन द सेल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. Phospholipids, glycosphingolipids, and cholesterol are the main lipid present in membrane. These lipids contain both hydrophobic and hydrophilic region, are therefore called amphipathic. Amphipathic means कि इसमें हाइड्रोफोबिक नेचर की भी है, हाइड्रोफिलिक रीजन भी है. जो फॉस्फोलिपिड बाइलेयर है उसमें जो हाइड्रोफोबिक रीजन है वो इनवर्ड होता है और हाइड्रोफिलिक जो होता है वो आउटवर्ड होता है. The lipids from a biomolecular lipid bilayer, their polar end face outward and inward, while non-polar regions face each other at the center of bilayer. ये जो आपको नजर आ रहा है ये इसके हाइड्रोफोबिक रीजन ये इनवर्ड है, और ये जो आपको बाहर नजर आ रहा है गोल गोल ये है इसकी हाइड्रोफिलिक रीजन. ये सर्कुलर हाइड्रोफिलिक इन नेचर है. ये जो दो स्ट्रैंड्स आपको नजर आ रही है हाइड्रोफोबिक इन नेचर है, इनवर्ड होते हैं, नॉन पोलर इन नेचर होते हैं. ग्लोबुलर प्रोटीन आर एम्बेडेड इन लिपिड बाइलेयर एट इरेगुलर इंटरवल्स. ये जो आपको नजर आ रही है पर्पल इन नेचर कलर की, ये है ग्लोबुलर प्रोटीन्स. The protein are held in place by interaction between them and the core of lipid bilayer. Presence of powerful covalent linkages between protein and lipids. Some proteins span the whole thickness of the membrane, while others span partially protruding either on the exterior or the interior of the membrane. अगर आप ये देखें ये वाली जो आगे मेन दिखाई हुई है पर्पल कलर की, ये आपकी वो पार्शियली इम्बेडेड है. ठीक है, कुछ होती है जो कम्प्लीटली इम्बेडेड होती हैं, और वो क्यों होता है क्योंकि वो कोवेलेंट लिंकेज जिसकी वजह से प्रोटीन और लिपिड्स के दरमियान वो इम्बेड होती हैं. The irregular distribution of protein in lipid bilayer give it the already mentioned mosaic appearance. However, the mosaic is not constant but is fluid, changeable from movement to movement. The fluidity of the mosaic is due to weak interaction between lipid and protein molecule that enable individual lipid and protein molecule to move freely laterally in the plane of membrane. मतलब आप कह सकते हैं कि horizontally move करते हैं. Recently, the outer lipid layer has been shown to have two characteristic structures at certain places. These have been designated lipid caveole and rafts.
The caveole are formed by curving inward of the inner leaflet of the plasma membrane. ये जो इनर मेम्ब्रेन है प्लाज्मा मेम्ब्रेन की, ये इनवर्ड मूव करती है. An integral protein, namely caveolin, forces the formation of caveoli, which are probably involved in membrane transport and rigidity. The rafts are made by the clustering of sphingolipids with cholesterol in outer monolayer of plasma membrane. The rafts are less fluid and thicker than the neighboring phospholipid-rich region. Due to these characteristics, the rafts are found to float on the more fluid phospholipids. The rafts appear to have receptor and signaling properties. Signaling proteins. Signaling proteins वो होती हैं जो सिग्नल ट्रांसफर करती हैं within the cell. The membrane proteins can be divided into two groups, the integral or intrinsic and peripheral or extrinsic. कुछ जो होती है इंटरनल प्रोटीन्स होती है, कुछ होती है जो एक्सटर्नल प्रोटीन्स होती है, दोनों के अपने अपने रोल हैं. The जो integral protein जहाँ internal protein है are usually globular and are themselves amphipathic and are bound tightly to the membrane. They generally span the entire lipid bilayer. Certain integral proteins are transporter proteins जो कि transport करेंगे molecules को, ions को. Various receptors and G proteins span the lipid bilayer many times. ये सारी जो है ये ट्रांसपोर्ट करती हैं डिफरेंट मेथड्स के थ्रू मॉलिक्यूल्स की आइंस की एक्सचेंज को इंट्रासेलुलर और इंटरसेलुलर और आउटर इन्वायरमेंट में. The peripheral protein, on the other hand, are weakly and reversibly bound to the hydrophilic region of specific integral proteins. For this reason, they can be dissociated from their binding site by simple process such as buffer washing. For example, a peripheral protein called ankyrin is bound to the integral protein of the RBC membrane called band 3 protein. The term peripheral protein also include the polypeptide hormone that get bound to the specific receptor on the cell membrane which actually are integral proteins. ये आप अगर देखें तो ये आपको मिलेगी एक्सट्रिंसिक प्रोटीन्स. ठीक है, ये जो हाइड्रोफोबिक बैंड्स हैं उनके साथ जो है वो इम्बेड है. ठीक है, और ये लूजली बाउंड है, ये इजीली डिटैचेबल हो सकती है. Membrane consists mainly of lipid and protein, but membrane also contain carbohydrate which are either linked to lipid forming glycolipids or proteins to glycoproteins. कि ये सिंगल प्रेजेंट नहीं होते कार्बोहाइड्रेट, ये बॉन्ड बना के लिपिड और प्रोटीन के साथ प्रेजेंट होते हैं. The membrane protein have several functions, many of which are quite specific. For example, proteins serve as transporter, including energy-dependent pumps. जो मेन और बेसिक फंक्शन है सेल मेम्ब्रेन का वो है ट्रांसपोर्टेशन. फर्दर अगर हम फंक्शंस की बात करें सेल मेम्ब्रेन के, मेम्ब्रेन एस्टैब्लिश एंड मेंटेन द कंसंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स. Most electrolytes and water between the exterior and interior of cell. This function is done by two types of transport, active and passive. एक्टिव ट्रांसपोर्ट जो होती है ये हमारी लो कंसंट्रेशन टू हाई कंसंट्रेशन की तरफ जाती है और इसमें एटीपी रिक्वायर होता है. जो हमारे पास पैसिव है वो हाई टू लो कंसंट्रेशन ग्रेडियंट की तरफ आती है और इसमें एटीपी रिक्वायर्ड नहीं होती. हम आगे फर्दर डिस्कस करेंगे डिटेल में एक्टिव और पैसिव ट्रांसपोर्ट. इसके अलावा स्पेसिफिक रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं पेप्टाइड हार्मोन जो एक्टिवेट करते हैं इंट्रासेलुलर सीरीज को, फॉस्फोरिलेशन रिएक्शन को और सिग्नल ट्रांसडक्शन करते हैं. मतलब कि अगर किसी एक स्पेसिफिक सिग्नल को हमने मेम्ब्रेन के अंदर भेजना है तो कपल ऑफ रिएक्शन के थ्रू वो मॉलिक्यूल बाहर से ही अपने सिग्नल विद इन द मेम्ब्रेन ट्रांसफर करता है. Membrane form closed compartment around cellular protoplasm, thus separating cells from each other, giving them the individuality. इसके अलावा स्पेशलाइज्ड कंपार्टमेंट भी फॉर्मेशन होती है जिसमें माइटोकॉन्ड्रिया, एटोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी प्रोटीन, सेक्रेटरी लाइसोसोम्स और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के थ्रू जो है वो सेल से प्रोटोप्लाज्म से सेपरेट कर देते हैं इन ऑर्गेनेलीज को. इसके अलावा एंडोसाइटोसिस और एक्सोसाइटोसिस में भी अपना रोल प्ले करते हैं. डिफरेंट डिजीजेस में भी रोल होता है. डिफरेंट तरह की डिजीज जो है वो मेम्ब्रेन में पैथोलॉजीज या एबनॉर्मेलिटीज हो जाए तो डिफरेंट तरह की डिजीजेस जो है वो रिजल्ट फॉर्मेशन डिफरेंट डिजीजेस हो सकती हैं. उनमें सबसे पहले है एक्टोन
अकेंड्रोप्लेजिया, जो अकेंड्रोप्लेजिया है ये बोन ग्रोथ का डिसऑर्डर है जो कि चेंजेस इन कार्टिलेज जो है उनको प्रिवेंट करता है, ठीक है, और ये कोज कर देता है ड्वार्फिज्म, शॉर्ट हाइटेड इंडिविजुअल्स। नेक्स्ट है फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया। फेमिलियल हाइपरकोलेस्ट्रोलिनिया जो है वो इंक्रीज कोलेस्ट्रॉल लेवल करता है बॉडी में। नेक्स्ट इज सिस्टिक फाइब्रोसिस। सिस्टिक ये हेरिडिटरी डिजीज है जो अफेक्ट करती है लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को। नेक्स्ट इज विल्सन्स डिजीज। जो विल्सन्स डिजीज है वो कोज करती है वो बेसिकली जो है डिसऑर्डर है, एक्सेस कॉपर जो है वो बिल्ड होना शुरू हो जाता है बॉडी में, ठीक है, तो उसकी डिसऑर्डर है। नेक्स्ट इज हेरिडिटरी स्पेरोसाइटोसिस। ये साइटोसिस से आपको इसका मतलब पता चल रहा होगा, हेरिडिटरी साइटो सेल साइटोसिस से इसका लिंक है और ये रेड ब्लड सेल और इथ्रोसाइट्स की जो है वो डिसऑर्डर है। हीमोग्लोबिनूरिया, ये एचबी का लेवल जो है वो इंक्रीज कर देता है। नेक्स्ट इज मूवमेंट। जो मूवमेंट होती है अक्रॉस द सेल मेम्ब्रेन ऑफ वाटर, सॉल्ट, विटामिन, अमाइनो एसिड, ग्लूकोज, फैटी एसिड, वो एंटर भी करते हैं, बाहर भी जाते हैं सेल से। और equally important is that metabolic product of foodstuff leave the cell. The cell membrane offers selective obstacle to the passage of substances across it due to high content of lipid molecule. Any substance that enter the cell interior does so in two stages. First क्या करता है वो lipid rich cell membrane में enter करता है, from which it then enter the cytoplasm which has an aqueous medium. दो तरह के medium हो गए, एक lipid in nature, एक aqueous in nature. The water soluble polar substances are obstructed at the lipid rich cell membrane. The obstacle offered by cell membrane has to be overcome by expenditure of energy, जो कि active transport के केस में होता है. However, once such a substance has entered the cell membrane, it can easily pass on in the cytoplasm due to its aqueous nature. जो aqueous होंगे उनको obstacle होगा lipid membrane में और साइटोप्लाज्म में वो इजीली मूव करेंगे। जो लिपिड सोलुबल होंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस होंगे, वो इजीली जो है वो लिपिड सेल मेम्ब्रेन से पास कर जाएंगे, लेकिन उनको साइटोप्लाज्म में डिफिकल्टी होगी पास करने में, एज द बॉन्ड विच हैव डेवलपमेंट बिटवीन them and the lipid molecule of the membrane have to be broken, और इसके लिए भी एनर्जी रिक्वायर होती है। It is thus clear that the molecule entering the cell interior must overcome the barrier either at the cell membrane or at the phase between the cell cytoplasm. The expenditure of some energy drive either from the metabolic processes और random collision जो कि आपस में उनकी हो रही होती है, उसकी वजह से जो एनर्जी प्रोड्यूस होती है उसके थ्रू भी वो एनर्जी रिलीज करके अपनी मूवमेंट को पॉसिबल करते हैं। नेक्स्ट, मूवमेंट ऑफ आयंस एंड स्मॉल मॉलिक्यूल्स, जो पैसिव तरह भी हो सकती है ट्रांसपोर्ट और एक्टिव की तरह भी हो सकती है, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ट्रांसपोर्ट ऑफ सब स्मॉल सब्सटेंसेस की 3 टाइप्स हैं। फर्स्ट इज यूनिपोर्ट। यूनिपोर्ट जो ट्रांसपोर्टेशन होती है, जो आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम नजर आ रही है, इन दिस केस अ सर्टेन सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस द प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिंगली, जैसे कि आप इसमें देख रहे हैं कि सिंगल है रेड मॉलिक्यूल और ये सिंगली एंड इंडिपेंडेंटली मूव कर रहा है from outside to inside. If a transport is involved in this process is called uniporter. One example is the plasma membrane calcium transporter that actively moves calcium ions from the cytosol into the extracellular fluid. Uniport may also be those working by facilitated diffusion bicarbonate transporter in certain cells. नेक्स्ट इज सिमपोर्ट। जो सिमपोर्ट ट्रांसपोर्ट होता है, ये होता है कि टू सब्सटेंसेस मूव अक्रॉस फ्रॉम टुगेदर इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है, टू मॉलिक्यूल एट अ टाइम मूव करते हुए ये स्मॉल मॉलिक्यूल जो आनी चाहिए तो ये इजीली पास कर सकते हैं, ठीक है, एट द सेम टाइम इन सेम डायरेक्शन मूव करते हैं। फॉर एग्जांपल सोडियम आयंस और ग्लूकोज जो हैं from the lumen of proximal convoluted tubule in the epithelial cell lining of the tubule, ठीक है। अगर ये एक एपिथेलियल सेल लाइनिंग है, ये नीचे जो आपको रेड में नजर आ रहा है, रेड में सोडियम है और ब्लू में ग्लूकोज है और ये दोनों आपस में जो है वो मूव कर रहे हैं
inside the epithelial cell lining. Next is antipode. Antipode is called counter transport, and in case transport called antipode. और जो substances हैं वो move करते हैं inward और outward opposite direction में, ठीक है, simultaneously. Antipode example is sodium potassium ATPase that cause efflux of 3 sodium ions to the cell exterior and a simultaneous influx of 2 potassium ions. जैसे आपने nerve impulse में पढ़ा था कि जब एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, जब एक्टिवेट होती है मेम्ब्रेन, तो जो 3 सोडियम है वो इनसाइड आते हैं, 2 सोडियम जो है वो 3 सोडियम आउटसाइड जाते हैं और 2 पोटाशियम अंदर आते हैं, ताकि जो मेम्ब्रेन है उसका ग्रेडियंट को मेंटेन कर सके. टू मोर एग्जाम्पल्स, एक होती है सोडियम हाइड्रोजन एंटीपोटर होता है, ये एपिथेलियल सेल लाइनिंग में होती है, प्रोक्सिमल कॉन्वोलेटेड ट्यूब्यूल में और थिक असेंडिंग लूप ऑफ हेनले में. जो सोडियम आयन है वो मूव करते हैं ट्यूबुलर ल्यूमेन इनटू ट्यूबुलर सेल, व्हेल द हाइड्रोजन आयन मूव करते हैं ट्यूबुलर सेल से ट्यूबुलर ल्यूमेन में. नेक्स्ट इज क्लोराइड बाइकार्बोनेट एंटी ट्रांसपोर्टर, ये आरबीसीज में होता है और इनको हम एनाइन एक्सचेंज प्रोटीन भी कहते हैं. इट इंक्रीज द परमेबिलिटी ऑफ आरबीसी मेम्ब्रेन टू बाइकार्बोनेट मोर देन अ मिलियन फोल्ड. ये किस तरह काम करता है? कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है टिश्यू में, वो ब्लड प्लाज्मा में एंटर करती है फ्रॉम वेयर इट एंटर द आरबीसी. द एंजाइम कार्बोनिक एनहाइड्रेज कैटेलाइज करता है रिएक्शन को, वाटर के साथ कंबाइन करता है और कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि डिसोसिएट हो जाता है हाइड्रोजन में और बाइकार्बोनेट में. As the bicarbonate content of cell increase, the exchanger move it out of RBCs into the plasma, while chloride ion from plasma enter the RBCs. ये मैंने आपको जो पीछे बताया था, जो हमने पढ़ा था रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, उसमें भी यही होता है कि जो कि बाइकार्बोनेट आयन को बाहर भेजते हैं और क्लोराइड आयन को इनसाइड भेज के जो लंग्स हैं उनका ग्रेडियंट मेंटेन रखा जाता है. नेक्स्ट इज मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल. जो मूवमेंट ऑफ लार्ज मॉलिक्यूल है उसमें हम दो तरह की चीज पढ़ते हैं, एक होती है एक्सोसाइटोसिस, एक होती है एंडोसाइटोसिस. अगर आप फर्स्ट वाली देखें तो आपको नजर आ रही होगी एक्सोसाइटोसिस. ये सिक्रीशन ऑफ साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन है जो कि सिक्रीटरी ग्रैन्यूल्स और वेसिकल्स की फॉर्म में होती है. The secretory vesicle have on their exterior a membrane having the same composition as the cell membrane, और वो जो मेम्ब्रेन होती है वो फ्यूज कर जाती है प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ. जैसे अभी आप ये देखेंगे कि ये बाइंड करता है और फिर जो मेम्ब्रेन है वो सेल मेम्ब्रेन के साथ बाइंड कर जाती है. ये देखें आप, ये सारे ग्रैन्यूल्स उसमें चले जाएंगे और ये इसमें सेपरेट हो जाएंगे और रिमूव कर देंगे बाहर. This is followed by the breakdown of the area of fusion, which results in outpouring of content of vesicle to the exterior of cell without producing any break in the cell membrane. ये देखें, अब ये जब इसके साथ आपस में फ्यूज की और ये जो वेसिकल्स थे ये रिमूव हो गए और सेल मेम्ब्रेन में भी कोई इफेक्ट नहीं आया. Exocytosis need energy, calcium and certain protein which by their so-called targeting action determine the location where a certain vesicle specifically fuse with the cell membrane. The further fate of exocytosed molecule varies. Some protein molecule become bound to cell membrane forming peripheral protein acting as antigens for hormones. Some molecule become part of extracellular matrix just like collagen, and some molecule hormone like insulin, PTH, parathyroid hormone and catecholamines enter the circulation, act on their target cells. Neurotransmitters like acetylcholine are released from presynaptic neurons and after bind with their receptor on the prostaglandin neuron or on muscle cell produce their characteristic action. The role of recycling also causes sorting endosomes in exocytosis. Next is endocytosis. Endocytosis involves continuous ingestion of cell by part of their own membrane along with material present on its outside. जो एंडोसाइटोसिस है ये आप देख सकते हैं कि जो मेम्ब्रेन है खुद में ही फ्यूज होती है और फिर जो है उनको सेपरेट वेसिकल की फॉर्मेशन में रिमूव कर देती है, इनवर्ड मूवेशन होती है. जो एंडोसाइटोसिस होती है वो दो तरह की होती है, एक फ्लूइड फेज होती है, एक रिसेप्टर मेडिएटेड होती है.
जो फ्लूइड बेस होती है वो रैंडम होती है, नॉन सिलेक्टिव होती है, और प्रोपोर्शनेट होती है कंसंट्रेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड के। द मेम्ब्रेन इन्वेजिनेट करती है इनवर्ट टू फॉर्म अ वेसिकल, और उसके साथ साथ वो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड और कुछ कंटेंट जो कि पड़ा होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, प्रोटीन्स का, पॉलीसेकेराइड का, उनको भी अपने साथ जो है वो ले लेती है और अलग से एक वेसिकल बना के सेपरेट हो जाती है। द पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट, जैसे ये वेसिकल है आपको नजर आ रहा है, द पोर्शन ऑफ द सेल मेम्ब्रेन दैट गिव राइट टू वेसिकल रीजनरेट एंड इज इमीडिएटली रिप्लेस so that the integrity of membrane is maintained. The vesicle now become bound with primary lysosome, and this union gives rise to what is called secondary lysosome. The hydrolytic enzyme present in the lysosome cause hydrolytic breakdown of macromolecule, जो कि उसने प्रोटीन्स और पॉलीसेकेराइड्स को अपने साथ अंदर लेके गई थी, उनकी फिर हाइड्रोलिटिक ब्रेकडाउन होती है इनटू शुगर अमाइनो एसिड, मतलब छोटे सिंगुलर मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो जाते हैं, and nucleotides which are released into cytoplasm for the metabolic uses. Some of the endocytosed material and their hydrolytic product may even leave the cell in the form of secretory vesicle called secretory endosomes. This type of endocytosis needs some source of metabolic energy, calcium ion, and contractile elements in the cell. Next is receptor mediated. It is also called absorptive endocytosis, and it is selective because the process starts with the binding of substance to be ingested with a specific receptor. स्पेसिफिक है, अब स्पेसिफिक रिसेप्टर के साथ बाइंड करेगी तो ही इंजेक्शन होगी. द रिसेप्टर आर प्रेजेंट इन द सो कॉल्ड कोटेड पिट्स प्रेजेंट ऑन द एक्सटीरियर ऑफ द सेल मेम्ब्रेन. ये जो पिट्स नजर आ रही हैं आपको, इसके ऊपर रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, ये है रिसेप्टर्स, ठीक है. The re-coated pit after taking up the material from small coated endocyte vesicle, which later pinched off from the cell surface followed by its internalization. The formation of the vesicle and its internalization need many factors that include adopter protein, liquid inositol, and a protein dynamine that bind and hydrolyze GTP for releasing energy. After internalization, these vesicles lose their clathrin coat and fuse with tubular stump early endosomes. ये जो आपको क्लैथ्रिन नजर आ रहे हैं, इनसे डिटैच हो जाते हैं और वो क्रिस्टल्स बनाते हैं, जिसको हम कहते हैं अर्ली एंडोसोम. द रिसेप्टर मॉलिक्यूल विद इन द एंडोसोम रिलीज देयर बाउंड लिगेंड्स. मेम्ब्रेन एंड रिसेप्टर मॉलिक्यूल फ्रॉम अर्ली एंडोसोम फॉर्म एक्सोसिटिक वेसिकल्स, जिन्हें हम सिक्रीटरी वेसिकल्स भी कहते हैं. नेक्स्ट, जो एंडोसोम्स हैं वो इंटरेक्ट करते हैं लाइसोसोम्स के साथ, और द पीएच ऑफ द लेट एंडोसोम इज एसिडिक दैट एक्टिवेट एसिडिक हाइड्रोलेज, जो कि ब्रेक डाउन कर देता है फिर प्रोडक्ट को और वो कन्वर्ट हो जाता है शुगर्स में, अमाइनो एसिड में. होल प्रोसेस ऑफ एंडोसाइटोसिस इन्वॉल्व एंडोसाइटिक वेसिकल, अर्ली लाइसोसोम, multivascular bodies, and late endosomes, lysosome, Golgi apparatus, and the rough endoplasmic reticulum. जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है वो प्रोवाइड करता है कंपोनेंट एसिडिक हाइड्रोलाइज वाया गोल्जी कम्प्लेक्स, और गोल्जी कम्प्लेक्स जो है वो एम्प्टी वेसिकल्स रिसीव करता है. नेक्स्ट इज फैगोसाइटोसिस एंड पिनोसाइटोसिस. ये डिपेंड करता है साइज ऑफ द मटेरियल पे जो कि इंजेस्ट हो रहा है. अगर कोई सॉलिड पार्टिकल है तो उसको हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, रेटिकुलो एंडोथेलियल सिस्टम में जो न्यूट्रोफिल्स होते हैं उनकी इनगल्फिंग होती है, मैक्रोफेजिस की, माइक्रोफेजिस की. ये होते हैं लार्ज पार्टिकल्स इन्वॉल्व होते हैं इसमें, सच एज बैक्टीरिया, वायरसेस, सेल डेब्रिस. और पिनोसाइटोसिस होता है टू ड्रिंक इस प्रॉपर्टी ऑफ सेल and leads to uptake of extracellular fluid and its content by the cells.